So it is a very vital document, as you people know. Now, because I had already finished the vital chapters or the important parts of ecology and environment, so I can find that now you people are quite comfortable to understand this chapter. So, what the economic survey briefly mentioned about the climate change and the steps taken by the global community as well as India in the recent past, and what is the impact of the climate change over the you can say India as well as the entire world, and how the world community are trying to face these challenges. This is mentioned in this chapter. So let's start the discussion. When you first look at what is mentioned in economic survey, as I have said earlier in my discussion when I was discussing the climate change, what is the definition of climate change? In the very first paragraph of economic survey, they had mentioned the definition of a climate change. And what the economic survey has mentioned, that economic survey has mentioned here that once you look at, sorry, the climate change is the long-term change. Okay, just so it is a long-term change once you look at in the temperature and the weather patterns that can occur due to natural regions. But since the beginning of the industrial revolution in the 19th century, it has been predominantly due to anthropogenic activities. So what I have mentioned earlier during my lecture, that what is the climate change? Climate change is any change in a climatic factors due to natural or anthropogenic activity or man-made activity. The same definition is written here. Okay, so what is written here? The long-term change in the temperature and the weather pattern. Because as you know, what is the difference between the weather and climate? Weather is a short-term phenomena, diurnal phenomena, while what is the climate? Climate is a long-term phenomena. And what are the major determining factor of a climate? As you know, precipitation, temperature, humidity. So if the temperature varies, okay, then the climate also varies. So what we observe here, according to the definition, is the long-term change in the temperature and the weather pattern we observe in the recent past, and this is due to the natural phenomena or natural activities, as well as after the industrial revolution, man also become a cause for the climate change. Okay, and now the man is become a very important factor of a climate change. Getting my point? So you have to understand it and try to find out what is the factor which led to this changes. Now once you look at, just a minute, and once you look at what is the impact of the climate change, it is also mentioned. They had mentioned that in economic survey that greenhouse gas emission are the most significant threat to the humanity and the inescapable reality the world faces. What does it mean? That it means that what the sentences explain here, the grievous condition of the greenhouse gases. The greenhouse gases emission, and why the emission takes place, especially due to the after the industrial revolution, due to anthropogenic activity. So what are the major cause of the greenhouse gas emission? Is the development, economic development. And as the structure of economy changes, now what we observe that due to that structural changes in economy, of course the greenhouse gas emissions also increases, and that what they had mentioned, that it is inescapable reality the world is facing. मीन्स आप इससे भाग नहीं सकते, क्योंकि this is the reality.
that we had already what emitted huge amount of the greenhouse gases, and as a emission of that, now we are facing various challenges. What are the challenges we are facing? The economic survey also mentioned it. What it is mentioned, that it is estimated that by 2030 about 700 million people worldwide will be risk of displacement by the drought alone. This is one example of what is the impact of the greenhouse gas emission, that only due to drought. And why the drought? Due to, of course, the change in the temperature as well as the amount of precipitation. So what we find, that fluctuation in the climatic factor, and that fluctuation led to the drought, floods, cyclones, okay, the vagaries in the monsoons, because the monsoon is not coming on the time, or sometimes the monsoon is very, you can say the good monsoon is there, huge amount of precipitation received by the monsoonal area, and sometimes that area face the drought. So only due to the drought, according to the economic survey, by 2030 almost around 700 million people is on the verge of displacement. Okay, they will leave their area, migrated to another one, and that create a geopolitical problem also, or internal problem in the country. Try to understand. So we are talking about here the global, this is the global figure, not the figure of India. 700 million people is displaced. Okay, so this is one example they quoted. Further they quoted other example also. Economic survey also mentioned that. And what is also there कि अब solution क्या होगा? One way to strive for its reduced emission of greenhouse gas, including the carbon. Carbon is a major greenhouse gas, as I have mentioned in my lecture. That what are the major greenhouse gases? Carbon, carbon monoxide, SO2, CH4, that is methane, and the nitrogen oxides also, or nitrous oxide, as well as water vapor, and sometimes the little amount of ozone is also play a significant role in the greenhouse gases. So basically the carbon is a major greenhouse gases, and many nations pledge to reduce their net emission to zero by 2050, and some wish to achieve by 2060 and 70. तो भारत का तो 2070 में नेट जीरो एमिशन रीच करना है, मैंने जैसा बताया था, दैट इज अ गोल. एंड दैट्स व्हाई दे हैड मेंशन द ग्राफ, दैट economic survey has mentioned the graph. According to this graph, once you look at the India placed the target to achieve the net zero till 2070. But the country like China, Indonesia, Russian Federation, Saudi Arabia, if you look at, they try to achieve net zero emission by 2060. And once you look at the Turkey wanted to achieve the net zero emission. The target is 2053, while Argentina, Australia, Brazil, Canada, EU, France, the European nation, Italy, Japan, South Africa, and Republic of Korea, that is South Korea, and UK, US. Okay, all these, what is their target? 2050, while the Germany try to reach the net zero emission by 2045. So this graph shows that the different country has taken the place to attain the net zero emission, okay, target in different years. And India, according to, and how they can achieve this, by of course implementing a good policy and the frameworks, as well as the technology interventions required. They had to move towards the renewable source of energy, as well as how we can achieve, of course, the finance. Huge amount of money is required to build such infrastructure, because we have a lack of finance, despite we are trying hard to achieve the net zero emission. But the India has taken a feasible target, because looking at the conditions what we have, and the looking at the amount of population which is living in India, okay, we have a huge population, the largest population of the world. So keeping in mind all these things, the India has taken the target of the net zero emissions till 2070. So this is the graph which shows the different countries' places. So you can expect a MCQ from this graph. इस ग्राफ से भी कुछ MCQ प्री में आ सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के टारगेट के ऊपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है. सो यू हैव टू ऑब्जर्व दिस. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड how we can achieve
the net zero emission target globally. Try to understand. For that we need to cooperate each other. उसके लिए हमें एक दूसरे को cooperate करना होगा international level पे. So economic survey also emphasize the who is the major culprit of the emission of the greenhouse gases. I had discussed in my previous lecture that majorly the greenhouse gases emission in the past is done by the developed or industrialized nation. The economic survey mentioned that share of the developing country in the stock of greenhouse has been minimal compared to developed country. It is mentioned in the economic survey what I have discussed. I had already discussed the basics, and the same thing has been repeated by economic survey time and again. Every year you get some common points you should keep in mind what I had discussed earlier, that is repeated here, and you get the same thing. And that's why your journey will be much easier, because I had already discussed all the basics points. Second point, what the economic survey has mentioned, that according to the Intergovernmental Panel on Climate Change 6th assessment report, because always the IPCC gave the report, the latest report, which was the 6th, which is quoted by economic survey, according to this reports, the high human vulnerability global hotspots are found particularly in the West and Central and the East Africa. तो मैंने भी आपको बताया था कि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा खतरा किसे है, तो मैंने बताया था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, एशियन कॉन्टिनेंट्स को ज़्यादा थ्रेट है. यहाँ भी लिखा है वेस्ट, सेंट्रल एंड ईस्ट अफ्रीका, मीन्स द इंटायर अफ्रीका आर इन थ्रेट. दीज आर द हाई ह्यूमन वल्नरेबिलिटी ग्लोबल हॉटस्पॉट, means the portion of this region are facing more threat due to the greenhouse gas emission, due to the impact of climate change, what the economic survey mentioned. What I am dealing right now, what is the economic survey mentioned? Apart from that, South Asia, Central and South America, and a small island developing states and the Arctic are the most vulnerable, okay, human high global hotspot. So we had also discussed in the past all this. I had also discussed the COP and the history of COP, and I had said that the small islands country especially form a group association, and they are started putting pressure over the developed and other developing countries to take the steps to control the greenhouse gas emission. Okay, तो सबसे ज़्यादा threat इनको है. And if you look at the economic condition of these countries, they are generally underdeveloped or developing economy. When you look at, so these are what? These are underdeveloped or developing economy. तो सबसे ज़्यादा threat किसको है? Underdeveloped और developing economy को. और सबसे ज़्यादा emission किसने किया past में? तो developed economy ने किया. We have already discussed this. अब इसके ऊपर क्या है कि इसके seriousness को देखते हुए एक कोटेशन जो है नोबेल लॉरेट का, थॉमस शिलिंग का 2005 में उन्होंने दिया था, उसको मेंशन किया इकोनॉमिक सर्वे में. मैंने उस कोटेशन को यहाँ से रिमूव कर दिया, आपके लिए कोर आइडिया उनका दिया. उन्होंने क्या कहा कि आर्ग्यू दैट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज वाज टू लेट नेशंस ग्रो फर्स्ट. व्हाट ही एम्फसाइजेस दैट कि ऑलरेडी द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, दोज हु बिकम द डेवलप्ड इकोनॉमी टुडे, has taken advantage. Okay, they had already used the fossil fuels, they run the industries, they occupied the resources from different nations, and they grow their economy. Now they are in better position. But what happened with the underdeveloped and developing economy? In the past they were exploited by industrialized nation. Now there is a time that they are growing, let them grow. What he stated that if the developed countries today, okay, if the developed countries today trying to put pressure over the developing economy that you jump over the renewable source of energy, they have no money to jump and to develop the infrastructure and switch over suddenly to the renewable source of energy. So they will reluctant to participate in the international arena to combat the climate change. And we are finding why the Kyoto Protocol target won't achieve, because the clash between the developed and developing economy. And what happened after the Paris Agreement, which is binding over all the nations, again the conflict is going on. तो इनका सजेशन है कि जिस तरह से डेवलप नेशन ने अपने आप को ग्रो किया,
उन्होंने रिसोर्सेज को यूज किया। डेवलपिंग नेशन और अंडर डेवलप्ड नेशंस को भी ग्रो करने दो पहले, उनके पास भी जब डेवलपमेंट हो, मनी आ जाए, तो अपने आप ही वो इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे और उसके लिए आप सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए। ये इनका एजेंडा है। मीन्स ही ऑल्सो बिलीव्स दैट द डेवलप्ड कंट्री इन द रेस, okay, what they taken the advantage. Now they are putting pressure over the underdeveloped and developing economy to take equal steps and measures. बट मैंने आपको बताया था ना, एक प्रिंसिपल है CBDR, उसमें हाइफन देकर आरशी भी लिख सकते हैं। ओके, सो अर्लियर इन द ईयर OECD and the Social Economic Lab at Harvard team up understand why policies to address climate change have been difficult to implement. अब देखो, ग्लोबल लेवल पर OECD और सोशल इकोनॉमिक लैब एट हार्वर्ड, इन्होंने एक स्टडी किया। उस स्टडी के ऊपर भी इकोनॉमिक सर्वे एम्फेसिस करता है। इससे तुम्हें क्या आइडिया मिलेगा ये मैं बताने वाला हूं। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि OECD एज वेल एज द सोशल इकोनॉमिक लैब एट हार्वर्ड, दे टीम्ड अप, दे स्टडीड एंड व्हाट दे कम ऑन टू द कंक्लूजन। उन्होंने ये देखा कि globally, even in the developed nation, once you look at why the country is not able to take the measures to reduce the greenhouse gases properly. ठीक है ना, क्योंकि यहां मैंने लिखा है why the policies to address climate change have been difficult to implement. ये इसके ऊपर इन्होंने स्टडी किया। कंक्लूजन क्या निकाला कि डेवलप्ड नेशंस में लोगों की लाइफस्टाइल इतनी ल्यूक्रेटिव हो गई है कि वो अपने लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, and they are burning lots of fuels and they are using energy, they are dependent entirely on energy. So what is the first point which is highlighted, which is crucial to understand, that the lifestyles and the habits like driving, flying, eating, they are the huge expenditure on the developed economy on this. They are fond of tourism, पैसा है, निकल गए घूमने, ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ियां सबके पास हैं, ठीक है, उनकी लाइफ स्टाइल है, दे हैव द प्राइवेट जेट्स, ओके, प्लेन्स, ओके, एज वेल एज दे आर ऑल्सो वोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द गुड फूड्स, ओके, देयर इज अ मोटेल्स, होटल, रेस्ट्रो कल्चर इज देयर, बार एंड ऑल, where the energy is required. So what this study emphasized by both, that they are not compromising their lifestyle and habits, and that's why the citizen in developed country would contribute to reduce emission. ये emission में तब contribute करते जब यहाँ compromise करते, and they are not ready to compromise. And that's why especially the economic survey has mentioned that when the France try to legalize and try to create a policy, the citizen put pressure and France withdraws. So in Europe, several countries withdraws the initiatives what they have taken. Why? Because of the pressure by the citizen, because citizens are not ready to compromise. So what is the important aspect? That developed country has to also take the steps. It is not the duty of the developing nations or underdeveloped world to always combat the issues. उनको भी आगे आना पड़ेगा। तो एक स्टडी ये भी बताता है कि डेवलप नेशंस के लोग जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। अगर वो यहाँ पर इनको रिड्यूस नहीं करेंगे तो इससे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन रिडक्शन नहीं होगा। और दूसरी बात क्या लिखा है कि द मेनी एक्सपर्ट्स ऑल्सो वार्न ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इसके ऊपर भी स्पेशल एम्फेसिस है। अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था पहले। सो दे एम्फेसाइज दैट कि अगला जो बोन ऑफ कंटेंशन होगा, जैसे अभी द वर्ल्ड इज फाइटिंग फॉर पेट्रोलियम। व्हाट इज द मेजर फ्यूल विच इज नाउ इन डिमांड इज पेट्रोलियम। आप देखते हो कि पेट्रोलियम की प्राइसेस इंक्रीज कर जाती हैं तो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। इंडिया में देखो, वी आर इंपोर्टिंग द पेट्रोलियम बिकॉज वी हैव लैक ऑफ पेट्रोलियम वेल्स एंड वेल्थ, एंड दैट्स वाई वी आर इम्पोर्टिंग। तो तुम जब इंपोर्ट करते हो तो आपके फॉरेन एक्सचेंज पे फर्क पड़ता है और उसके कारण आपके मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाते हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने के कारण। पता है, उससे यहाँ पर गवर्नमेंट डिटरमाइन हो जाती है कई बार, ठीक है ना। द पॉलिटिक्स इज गाइडेड एंड नॉट ओनली इन इंडिया, इन सेवरल कंट्रीज, ओके।
सो अभी सबसे बड़ा इश्यूज क्या है, पेट्रोलियम एज अ फ्यूल। आगे फ्यूचर में चलकर रेयर अर्थ एलिमेंट एक बड़ा हो जाएगा फ्यूल। क्यों ऐसा हो जाएगा, उसके ऊपर इकोनॉमिक सर्वे ने ही हैज डेडिकेटेड अ इंटायर 2-3 पैराग्राफ्स कि व्हाई द रेयर अर्थ एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर। बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हो, अभी आप देख रहे हो ना, लोग क्या कह रहे हैं कि अब हम लोग पेट्रोलियम से नहीं चलाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे। भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी फ्यूल यूज होगा, उसको भी चार्ज करोगे, उसके लिए बैटरीज बनाओगे। वो बैटरी किसका बनेगा, वो बनेगा लिथियम का। से फॉर एग्जाम्पल लिथियम इज अ रेयर अर्थ एलिमेंट। तो किसकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है, सोलर पैनल बनाओगे, सोलर पैनल को चार्ज करने के लिए आपको बैटरी चाहिए, बैटरी कहाँ बनेगी, लिथियम की। किसकी डिमांड बढ़ेगी फ्यूचर में, रेयर अर्थ एलिमेंट। अब देशों ने क्या किया, दे स्टार्टेड ग्रैबिंग द माइंस ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट। नाउ द डेवलप्ड कंट्रीज ट्राई टू इन्वेस्ट इन अफ्रीका, दे आर ऑल्सो फाइंडिंग आउट कि साउथ एशिया में कहाँ वो माइंस मिल जाए। तो ये बड़े पहले से प्लान कर लेते हैं, आप समझ रहे हो ना। नाउ एलॉन मस्क हैज इन्वेस्टेड in a huge amount of money to develop the electric vehicle। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कहाँ हवा में बनाएगा, उसके लिए भी तो उसको रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए। So now the developed countries are looking towards, and those who are the developing economies, they are also thinking about, China is also looking at, India is also looking at, we have also the rare earth element, but फिर भी हम बहुत सारे एलिमेंट को इम्पोर्ट भी करते हैं। तो अगर इंडिया में भी अब देख रहे हो कि the Mahindra is coming, the Tata is coming, the Ola is coming in the field of electric vehicle, there are lots of companies are launching their vehicles, already they had launched। तो क्या फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी, रेयर अर्थ एलिमेंट की। इकोनॉमिक सर्वे उस पर इंफेसाइज कर रहा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम द रेयर अर्थ एलिमेंट इन द रिसेंट एग्जामिनेशन। जब भी एग्जामिनेशन होंगे तो आई एम एक्सपेक्टिंग द क्वेश्चन फ्रॉम दिस फील्ड। ओके, सो व्हाट द इकोनॉमिक सर्वे emphasizes that many experts also want the availability of the rare earth element and the critical minerals, okay, essential for generating renewable energy। it is mentioned, economic survey ने लिखा है कि ये rare earth element और critical mineral किसके लिए important है, to generate the renewable energy। why to generate the renewable energy, अभी मैंने कहा सोलर पैनल बनाने के लिए आपको ये एलिमेंट चाहिए, बैटरीज बनाने के लिए चाहिए। Getting my point, yes or no? So it is emphasizing, मैंने कहा this is the best document you can read and you can understand। okay, and to be the next geopolitical background, as crude oil has been over the last 50 years, जो हमारे पास क्रूड ऑयल है अगले 50 साल में उसका क्या होगा, माइन उसके जो वेल्स हैं, जो रिसोर्सेज है, वो डिक्लाइन करेगा, बिकॉज दे हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज। इनफाइनाइट तो है नहीं रिसोर्स, वो फाइनाइट रिसोर्सेज है। एंड कंजम्पशन लेवल अपने पिक पर पहुंच चुका है ऑलमोस्ट सभी देशों में, धीरे धीरे पहुंच रहा है। लाइक इंडिया, वी आर कंज्यूमिंग, एंड एज द इंडिया इज प्रॉस्पेरिंग, so the consumption demand will be increases। तो क्या होगा, अगले 50-60 सालों में पेट्रोलियम्स का कंजम्पशन इतना हो चुका रहेगा कि वो डिक्लाइन कर जाएगा रिसोर्सेज। तो आप किधर की तरफ जाओगे, आप आरई की तरफ जाओगे, सीएम की तरफ जाओगे, यू आर मूविंग थ्रू द रेयर अर्थ एलिमेंट एज वेल एज क्रिटिकल मिनरल। तो इसका डिमांड बढ़ने वाला है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रही है बात है। व्हाट, अभी देखो इकोनॉमिस्ट, ओके, जिन पेशानी फेरी, को फाउंडर ऑफ द ब्रुगेल, द यूरोप्स लीडिंग इकोनॉमिक थिंक टैंक, ये क्या बोलते, व्हाट ही ऑब्जर्व दैट क्लाइमेट एक्शन हैज बिकम अ मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू। इन्होंने कहा कि आज ना क्लाइमेट एक्शन जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज बन गया। ही एम्फेसाइज स्पेशली, now you cannot segregately understand the climate change and economy, the economy is intricately linked with the climate change or the action over the climate change। okay, because what we find, direct influence on economy। अगर क्रॉप डैमेज हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज तो उसका कॉस्ट कैलकुलेट करो। ठीक है, अगर पेस्ट अटैक हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और उससे डैमेज हो रहे हैं तो यू कैन कैलकुलेट।
फ्लड आ रहा है उससे आपकी प्रॉपर्टी लॉस हो रही है, ड्राउट आ रहा है उससे जो लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, लॉस ऑफ द एनिमल, लॉस ऑफ द प्लांट्स एंड क्रॉपलैंड, उसका तुम इकोनॉमिक वैल्यू निकालो. द इकोनॉमिक वैल्यू इज इंक्रीजिंग. द loss due to climate change, if you calculate that loss, it is increasing with the time. And that's why he emphasized that now the climate action is a macroeconomic value. अभी क्यों उसका मैक्रो इकोनॉमिक वैल्यू है, यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज नाउ द बर्डन ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग. Not only it affect the health of the human being but also the health of the animal, as well as what, the plants of course. And when I am talking about the plant, I am talking about the natural biome and habitat as well as the man-made, that is cropland, horticulture and all. And that's why he emphasizes that. Okay, and so the policy conversation now needs methodological peer examined assessment. So what he emphasized, that we have to make such a policies where we can understand this economic value and we can draft the policies and framework for the future so we can maintain it. So what is the need of the time? Of course, to take such an action that we can control the greenhouse gas emission. Reduction is very, very important. Okay. Now, another, what is the economic survey emphasize? The impact of climate change on India. Okay, India having the long coastline, what the economic survey mentioned, as you people know. Okay, and monsoon dependent agriculture and the large agrarian economy. Almost 55% population is directly or indirectly depend on agriculture, as you know, as is one of the most vulnerable country of the world due to climate change. Because of the change in the sea level, there is a direct threat to the coastline of India, as well as the island of the India, like the Lakshadweep and the island of the Gulf of Mannar, as well as the Andaman Nicobar, as well as the island of the Gulf of Khambat, Gulf of Kutch. Okay, all these having the direct threat. So no need to explain it because I had already explained it in the past. Economic survey emphasized on it. Now, also economic survey what it emphasized, मैंने आपको बताया था, कंपैरिजन कराया था कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इमिशन देखेंगे तो यूएस करता है. भारत का कंट्रीब्यूशन मैंने बताया था कि इंडिया हैविंग कंट्रीब्यूटेड ओनली अबाउट 4% एंड इकोनॉमिक सर्वे मेंशन्ड इट. I had already mentioned in my discussion in the past. Okay, only 4%. Cumulative global emission का 4% भारत करता है for the period 1850 to 2019. Economic survey also mentioned. Okay, इस पीरियड में भारत ने केवल 4% का कंट्रीब्यूशन किया अगर हम देखेंगे किसका, ग्रीन हाउस गैस इमिशन का. Okay, and maintaining its per capita emission at far less than the world average. But what we are looking at in every meetings, the developed countries are putting pressure over India that you take the measure, despite we are very less emitter. Okay, and that's why India is keep asking about CBDR. Okay, which was also taken in the Paris Agreement. Already I had mentioned. Why the world community ready? अगर भारत का ऐसा contribution नहीं होता तो ये ready भी नहीं होते. ठीक है. While India is less responsible for the high stock of emission, economic survey is a government document. So what the economic survey stated that कि despite हमने बहुत कम emission किया है, अगर हम global average देखें per capita के हिसाब से भी तो हमने कम contribution किया है, उसके बावजूद भी भारत बहुत sensitive है. भारत अपने रोल को महसूस करता है कि भारत का भी important रोल है और भारत इस बात के लिए तैयार है कि हम एमिशन का रिडक्शन करेंगे. तो व्हाट इज मेंशन्ड इन इकोनॉमिक सर्वे कि while India is responsible for high stock of emission, however it has consistently engaged in the demonstrating global leadership towards adopting various measures and ensuring a low emission growth pathway with commitment to the net zero emission goal by 2070. क्या लिखा कि despite India is contributing less,
but India is very serious about reductions goal, and that's why what the India has taken the goal to achieve net zero emission till 2070. What it shows that India is of course very serious and sincere party of the United Nations Framework Convention for Climate Change. Okay, you have to tell it. आपको लिखना भी पड़ेगा. और अब इकोनॉमिक सर्वे ये भी कहता है कि आखिर कैसे हम सोच सकते हैं कि नेट जीरो एमिशन अचीव हो जाएगा. तो इसके अचीवमेंट के लिए कुछ एग्जाम्पल दिया कि भारत ने क्या स्टेप्स लिए. उसने मेंशन किया कि इन 2008 फार अहेड फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट. क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन किया गया और पेरिस ठीक है 15 ये 2008 ड्यूरिंग द क्योटो पीरियड, बिकॉज 8 to 12 मैंने बताया था कि द क्योटो पीरियड विल बी एंड इन 12. फार अहेड बिफोर द पेरिस एग्रीमेंट द इंडिया हैज टेकन द प्लेस. ओके, इंडिया लॉन्च द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC. व्हाट द इकोनॉमिक सर्वे रिमाइंड्स अस कि याद रखो कि भारत ने 2008 में ही NAPCC लॉन्च कर दिया था. NAPCC क्या है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. ओके, एंड इस्टेब्लिशिंग 8 नेशनल मिशन. और भारत ने पेरिस एग्रीमेंट के पहले ही 8 मिशन लॉन्च कर दिए 2008 में. ज्वाइंटली उसे हम क्या कहते हैं? NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज. वो 8 मिशन भी ब्रीफली मेंशन किया है. किसने? इकोनॉमिक सर्वे ने. वो ये 8 मिशन उन्होंने मेंशन किया कि भारत ने 2008 में अंडर द NAPCC नेशनल सोलर मिशन लॉन्च किया. नेशनल सोलर मिशन के लिए उन्होंने एक ब्रीफ आइडिया दिया है कि इसमें क्या अचीव करना है और क्या किया. सोलर पावर कैपेसिटी ऑफ 61.62 गीगावाट इंस्टॉल्ड बाय अक्टूबर 2022, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुका. व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ दिस? इट इज मेंशन कि नेशनल सोलर मिशन का अचीवमेंट क्या है? 61.62 गीगावाट ओके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड by October 2022. We are in 2023 now. What is the National Mission for Enhanced Energy Efficiency? This is another mission under NAPCC. 8 मिशन है, इसमें यह भी था. क्या करना है? एनर्जी एफिशिएंसी, बिकॉज वी आर लूजिंग एनर्जी. आपको पता है वायर से जब एनर्जी हमारे यहाँ अब धीरे धीरे कवर्ड वायर लग रहे, पहले ओपन वायर होते थे. पता है गांव में तो ज्यादातर लोग फ्री में बिजली यूज करते हैं, ठीक है, लगा कर. तो अभी क्या है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इज, एंड एज यू नो द इलेक्ट्रिसिटी, द पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल एस्पेक्ट, एंड द पॉलिटिक्स इज ऑल्सो गोइंग ऑन. अभी आपने देखा होगा दोज हु आर लिविंग इन दिल्ली, द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता है कि पार्टी ने कहा, जो विच इज इन नाउ फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन दिल्ली, फ्री बिजली, ठीक है ना, 200 यूनिट तक बिजली फ्री है. और उसमें आपको अपने ऑप्शन देने थे कि वेदर यू वांटेड द फ्री इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल, 60%, 66% पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली हैज सेड यस वी नीड अ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर प्रोवाइडिंग. अब इसमें प्रॉब्लम किसको है? डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉब्लम. बिजली फ्री में नहीं पैदा हो रही, लेकिन सरकार पॉपुलिस्ट मेजर लेती है और फ्री में देती है, तो उसका पैसा वो एक अलग इशू है. अभी डिस्कॉम कंपनियां हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वो लॉस में जा रही है, बहुत सारी कंपनी. और वो कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो तो तैयार ही नहीं होती हैं कि मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, क्योंकि बेनिफिट होगा तभी तो. वो एक अलग इशू है. जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे सेपरेटली, उसके चैलेंजेस पढ़ेंगे भारत में तो पढ़ेंगे. तो एनर्जी एफिशिएंसी कैसे इन्हांस की जाए, उसके लिए एक अलग मिशन है NAPCC के तहत, ठीक है ना. उस मिशन का नाम है नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी. इसमें अब परफॉर्म, अचीव एंड टेस्ट ये टारगेट है. परफॉर्म, अचीव एंड, यहाँ पर टारगेट, ये PAT साइकिल कहते हैं. दिस साइकिल हैविंग डिफरेंट साइकिल 1 2 3 4 5. इसमें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी
डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, वहां हम क्या करते हैं, वहां हम यहाँ कंट्रोल करने के, जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज, वहां पर हम कैसे रिडक्शन करें जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच वी आर कंज्यूमिंग, हाउ वी कैन अडॉप्ट अ मेजर्स वेयर वी कैन यूटिलाइज प्रॉपर एनर्जी एंड वी कंट्रोल द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, उसके लिए एक साइकिल शुरू हुआ, पैट 1, पैट 2, पैट 3, पैट 7 तक पहुंच गए। ठीक है ना, तो notified in October 2021 the patch 7 which is mentioned that I will give the document of entire pat, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिसमें पैट 1 से लेकर पैट 7 तक सारे डिस्कस है इन वन पैराग्राफ। ओके, फॉर एनर्जी शेविंग टारगेट ऑफ 6.63 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, ये मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, क्योंकि अभी हम ऑयल यूज करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, उससे जो हम निकाल रहे हैं ग्रीन हाउस इमिशन, अगर उतना ऑयल आप रिड्यूस करेंगे उतना ग्रीन हाउस कम निकलेगा। उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पैट 7 के तहत हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। हमारा शेविंग टारगेट है कि हम एनर्जी कितना सेव करेंगे, और उसके लिए हमने कुछ इंडस्ट्रीज को टारगेट किया है, कुछ कोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को टारगेट किया है जो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उसे हमने टारगेट किया है कि वहाँ हमें एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने का मतलब ये नहीं है कि हम इंडस्ट्री बंद करने वाले, वी विल टेक द एफिशिएंट मेजर्स, गेटिंग माई पॉइंट, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रिन्यूएबल सोर्स एंड टेक द एफिशिएंट मेजर, इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी लाना है, एफिशिएंसी बढ़ाना है, ऐसा नहीं कि यूनिट बंद करना है और एनर्जी को सेव करना है। ठीक है, तो पैट 7 के तहत क्या टारगेट है, उसके तहत टारगेट है 6.63 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, इतनी एनर्जी सेव करने की। अगर इंडिया उसको अचीव करता है तो ऑफ कोर्स इतना हम एमिशन रिडक्शन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फॉसिल, अगर ये फ्यूल बर्न होगा ऑफ कोर्स इट विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इतना एनर्जी तुम कम यूज कर भी वही इंडस्ट्री चला लोगे इफ यू आर व्हाट मूविंग टुवर्ड्स द ग्रीन, आप ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ मूव कर रहे हो। थर्ड, एनएपीसीसी का मिशन क्या था, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। नाउ वी आर पॉल्यूटिंग द हैबिटेट आल्सो, whether it is aquatic or terrestrial. So now what is the mission of, again, to develop sustainable habitat. What we had did, 721 kilometer of metro rail network made operational by August 2022. क्या लिखा है कि अगस्त 2022 तक इंडिया में 721 किलोमीटर मेट्रो रेल रूट आ गया। उससे क्या हुआ, फायदे क्या हुए मेट्रो आने से, public transport has improved. In Delhi now, the people prefer metros, especially in the peak hours. Why? Because if you are using your own vehicle, you are not reaching at destination on time. So largely now, the people of different classes, you can say, if you move to the metro, okay, the people of different classes using the metro today. Not only the lower income group people are using the metro, but the middle income group and higher income group people are also using the metro. At various metro stations in Delhi, if you move, there is a special parking where the people used to leave their vehicles and use the metro, reach their destination, again return back, and they pick their vehicles and reach their homes. Okay, so now the people, if the public transport system is well in India, the people won't move through their own vehicles. Okay, especially in the metros where there is a traffic problem. Okay, and people is realizing it, and not only this is not only the case of India, but when you move to Japan, और मैंने तो कहा नॉर्वे और स्विट्जरलैंड में तो पूरे के पूरे ऑफिसर्स जो होते हैं, ऑफिस की बसेज आती हैं उससे जाते हैं, and that's why at the indicators of a green environment HDI they are on top, because उनकी लाइफ स्टाइल अलग है, and they are very wise and they understand, they are prone to susceptible to the climate change issues. In India the people use, because हमारे यहाँ गाड़ी, मैंने कहा स्टेटस सिंबल भी है, आप प्राइड फील करते हो अपनी गाड़ी से घूम रहे, बट डेवलप नेशंस में अब धीरे धीरे वो टेंडेंसी खत्म हो रही है। ठीक है,
और फ्यूचर में डेवलपिंग भी वापस लौट कर आएगा, क्योंकि सड़क पे आप खड़े रहेंगे घंटों, इरिटेट होंगे, तो यू यूज। रिसेंटली इन वाराणसी देयर वाज अ प्रोजेक्ट ऑफ मोनोरेल एज वेल एज ट्रॉली। ट्रॉली भी एक प्रोजेक्ट अभी अभी लॉन्च, अभी उसका डीपीआर बन रहा है। इन मुंबई देयर इज अ मेट्रो मोनोरेल प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन। अभी ऐसे जो आ रहे हैं हाई स्पीड ट्रेन्स as well as this will enhance what the public transport system, and as the public transport system will be much better in India, people try to move on this and reduce the pressure over the private vehicle. Okay, so 721 kilometer metro rail and 62.79 lakh individual household toilets and 6.21 lakh community and public toilet constructed by April 2022. स्वच्छ भारत मिशन आपको पता है उसके लिए था, टॉयलेट बनाए गए। तो टॉयलेट से क्या है, हाइजीन। देयर आर लॉट्स ऑफ डिजीजेज विच स्प्रेड ड्यू टू अनहाइजीनिक कंडीशन, सो this is comes under national mission on sustainable habitat. The government has make the toilet. Okay, now national mission for a green India, another mission under NAPCC, okay, which was launched in 2008, as you know. 629.96 crore for afforestation target over an area of 2.1 lakh hectare. So if you look at the biennial report of India, ISFR forest report, gradually in the last decades the forest cover increase in India. Why the forest cover increase in India? There are various intervention behind it, and the economic survey especially dedicate few paragraph on how the forest cover has increased in India and what are the scheme and plan responsible for that. One is the national mission for green India. ये ग्रीन इंडिया मिशन का भी एक रोल है। क्यों? क्योंकि ग्रीन इंडिया मिशन में क्या टारगेट था, 2.1 लाख हेक्टेयर में, ठीक है ना, क्या करना, फॉरेस्ट एफॉरेस्टेशन टारगेट, पार्डन, हाँ हाँ। नाउ नेशनल वाटर मिशन, व्हाट इज द एजेंडा, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन water harvesting techniques we have to utilize, because as you know, in India, when you look at various cities which become dry today, okay, we are purchasing the water. So what is the India's mission is, another mission is the national water mission, under which the government is emphasizing on Jal Shakti Abhiyan to improve what, the rainwater harvesting, the watershed management. Okay, now national mission on strategic knowledge for climate change, created and extended 12 center of excellence for climate change. अभी क्या करना है, लोगों के अंदर अवेयरनेस भी बढ़ाना है towards the climate change. For that, Government of India has set up especially the 12 centers of excellence under the national mission on strategic knowledge for the climate change. So now the government is very sensitive towards it. A special mission has launched to research over the climate change and its impacts on India. And for that, government has set up what, 12 center of excellence. Another mission which is mentioned in economic survey highlighted, which was under NAPCC, okay, launched in 2008, National Mission for Sustaining Himalayan Ecosystem. Himalayan ecosystem is most fragile in India. Okay, that is as you know, ecological hotspot. मैंने आपको बताया हिमालयस, वेस्टर्न घाट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में भी है, और उसको सस्टेन ग्रो करना है तो उसके लिए ज़रूरत है। गवर्नमेंट हैज सेट अप द इंटर यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम एंड 8 मेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू कंजर्व व्हाट, द हिमालयन इकोसिस्टम। स्पेशल मिशन है उसके लिए। हाँ, और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑफ कोर्स, बिकॉज एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी, and key target for financial year 2022-23, what, covering 0.15 lakh hectare under organic farming and 10 lakh hectare under the micro irrigation. So we are moving towards organic farming. We are reducing our burden from the chemical fertilizers. Try to understand, to make agriculture more sustainable, more eco-friendly. Okay, so these are the highlighted points under every missions. You should keep in mind that such missions
which is comes under NAPCC, already launched by India far ahead the Paris Agreement in 2008. And what we have achieved under this mission, this is the highlight of that. हमने बहुत कुछ अचीव किया, ठीक है, समझ आ रही है बातें? So this is the point you have to understand. Next, भारत ने और क्या किया? भारत ने एक क्या किया है, फंड क्रिएट किया, नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, NAFCC. It is a central sector scheme. What the economic survey has given you idea, kids, you must understand it is a central sector schemes. Okay, what is the name of that scheme? What? The National Adaptation Fund for Climate Change. Okay, तो इकोनॉमिक सर्वे आपको बेसिक्स भी बता रहा है. इससे फायदा क्या होगा कि व्हाट द स्टेप्स ऑलरेडी टेकन बाय इंडिया, यू मस्ट अंडरस्टैंड. वेरी ब्रीफली दे हैड मेंशन्ड द की पॉइंट्स. Okay, the key achievement under this project. Okay, and it was initiated in 1516. Paris year देखो, Paris Agreement. Okay, तो भारत ने लॉन्च किया एक स्कीम, सेंट्रली सेक्टर स्कीम, नेशनल एडेप्टेशन फंड. बिकॉज क्लाइमेट चेंज का एक इशू क्या है कि आपको एडेप्टेशंस भी करना होगा अकॉर्डिंग टू चेंजिंग क्लाइमेट. एडेप्टेशन इन द your economic growth, adaptation in agriculture, adaptation in other activities. Okay, looking at the climate change. उसके लिए फंड की जरूरत थी, अलग से एक सेपरेट स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया टू सपोर्ट द एडेप्टेशन एक्टिविटी इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया दैट आर वल्नरेबल टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. अभी मैंने बताया कि हिमालयन स्टेट आर वेरी प्रोन टू द क्लाइमेट चेंज, द कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया आर वेरी प्रोन टू द क्लाइमेट चेंज, द आइलैंड state or UT of India are prone to climate change. The western part of the India, which is the dry part, are prone to the climate change. तो भारत के वो राज्य और वह यूनियन टेरिटरी जो ज़्यादा खतरे में है क्लाइमेट चेंज के कारण, वहाँ पर एडेप्टिव मेजर्स लेने के लिए अलग से भारत सरकार की सेंट्रल स्कीम्स क्या है, एक अलग से फंड है. इस फंड से पैसे उन राज्यों को और यूनियन टेरिटरी को दिए जाएंगे जो ज्यादा वल्नरेबल है. ठीक है, नाउ अब ये प्रोजेक्ट मोड पर पैसे खर्च किए जाएंगे. प्रोजेक्ट लिया जाएगा राज्यों में, उस प्रोजेक्ट को के ऊपर पैसा देंगे इस फंड के थ्रू. तो क्या मेंशन किया है, इकोनॉमिक सर्वे हैज आल्सो गिव यू द आइडियाज कि हाउ द NAFCC यूज्ड. द NAFCC अंडर दिस स्कीम अ प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड. इस स्कीम के तहत एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा. एंड टू डेट 30 प्रोजेक्ट्स, आज तक कितने प्रोजेक्ट हैं सैंक्शन इन 27 एंड यूटीज? 30 प्रोजेक्ट्स विद द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 847.5 करोड़. तो इस फंड से कितने पैसे अभी तक लग गए हैं? 847.5 करोड़ on 30 projects, and the projects are related to climate adaptation. In how many states? In 27 states and UTs. Okay, so you can think that how India is very sensitive and taking measures and steps to control the greenhouse gas emission, and India is also very keen to take the adaptation measure. So NAFCC support adaptation action. Okay, agriculture, water, forestry, livestock, restoring ecosystem. And at present November 2022, 28 projects are under implementation. तो किन किन चीज़ों में आपको एडेप्टिव मेजर्स लेना है? इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लाइव स्टॉक, वाटर मैनेजमेंट, ओके, एंड रेस्टोरिंग इकोसिस्टम. तो तुमने क्या देखा? पहले तो NAPCC देखा 2008, फिर देखा 15-16 क्या, NAFCC. ठीक है, ऑलमोस्ट 850 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी. तो आपको एज इट इज एग्जैक्ट फिगर नहीं याद रखना, लेकिन आपको एक आइडिया दिमाग में रखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? इकोनॉमिक सर्वे. व्हाट द इकोनॉमिक सर्वे मेंशन? इंडिया हैज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट गोल्स ऑल्सो.
integrated development goals, okay, with ambitious climate action goal. Integrated means holistic, okay, in the form of augmented solar power capacity. क्या करना है? ऑगमेंट करना है सोलर पावर कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमें बढ़ानी है। उसके लिए नेशनल सोलर मिशन, मैंने पहले ही कहा, ऑलरेडी 61 गीगावाट इंस्टॉल्ड किया जा चुका है। तो तुमने क्या देखा? सोलर पावर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड, हायर एनर्जी सेविंग टारगेट नोटिफाइड इन पैट साइकिल 7। अभी बताया पैट साइकिल के अंदर क्या किया गया है, कोर इंडस्ट्रीज को टारगेट किया गया है और वहां इमिशन रिडक्शंस का टारगेट है, ओके। फिर क्या है? इम्प्रूव्ड द ग्रीन गवर्नमेंट एक्शंस और वो कवर फैसिलिटेटेड बाय ग्रीन इंडिया मिशन। तो ग्रीन इंडिया मिशन भी मैंने बताया आपको, ठीक है। फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है, एफॉरेस्टेशन इंक्रीज करना है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट continuously. The Indian forest cover is increasing, as I have said. You can read the biennial forest report also. तो ओवरऑल क्या इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि जो इंटीग्रेटेड गोल्स है वो क्यों अचीव हो रहा है? क्योंकि भारत ने यह सारी चीजें लॉन्च की हैं। ड्यू टू लॉन्च ऑफ ऑल दीज वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट? वी आर मूविंग टुवर्ड्स अचीविंग आवर गोल्स ग्रेजुअली, okay. So India is taking several steps, has taken a special paragraph है nationally determined commitment जो है। So India's updated nationally determined contributions when it was updated, अभी इंडिया सबमिटेड फर्स्ट एनडीसी किसको दिया था? यूएनएफसीसी। इसके तहत कंपलसरी हो गया था, आपको बताया था मैंने, कॉप हिस्ट्री आई हैड मेंशन्ड। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन को हर गवर्नमेंट को अपने रिपोर्ट देने थे कि आपने अपने देश में क्या लिया है स्टेप्स एंड मेजर्स। तो भारत ने पहला कब दिया था? अक्टूबर 2015। वेरी शेयर, जब भी आप 15 में पहुंचे तो लिंक करेंगे, ठीक है ना। तो भारत ने दिया। अभी क्या है कि अपडेटेड उसने क्या किया है? एनडीसीज 2022 में दिया। तो यहाँ क्या लिखा है? इंडियाज अपडेटेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। जो 2015 में भारत ने दिया था एनडीसीज यूएनएफसीसीज को, उसमें 8 गोल थे। देयर वर 8 गोल्स, ओके। नाउ 3 of which were quantitative targets to be achieved up to 2030। उसमें से 3 टारगेट जो थे उसको 2030 तक अचीव करना। And the 3 target included cumulative electric power installed capacity from non-fossil sources यानी renewable sources, reach 40%। ऑलरेडी भारत 40% पहुंच चुका है। अब 2050 तक का टारगेट लेके चल रहा है। 40% रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का जो टारगेट है भारत ऑलरेडी अचीव कर चुका है। अब 2030 तक करना था, वो भारत अचीव कर लिया। अभी आगे 50 तक का टारगेट लेके चल रहा है, उस पर मैं अलग से डिस्कस करूंगा। तो पहला एक गोल क्या था? मूव टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, मूव टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी, मूव टुवर्ड्स द नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी। एंड इंडिया हैड ऑलरेडी अचीव द टारगेट ऑफ 40%। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो एनडीसी का टारगेट था। तो ऑब्वियसली भारत ने कुछ किया होगा तभी तो अचीव किया होगा, बिना किए तो अचीव किया नहीं होगा, ठीक है। और अभी मैंने पीछे बताया उसके लिए सोलर मिशन, ठीक है, एक बड़ा मिशन है। भारत ने सबसे ज्यादा अचीवमेंट ग्रीन एनर्जी में सोलर में किया है, क्योंकि अभी और भी फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं लाइक टाइडल और ओटेक और विंड, ओके। देयर आर लॉट्स ऑफ हाइड्रो एनर्जीज, ओके, उसमें भी है स्मॉल हाइड्रो। फिर क्या है? रिडक्शन इन द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 30 to 35% कंपेयर टू 2005 level and creation of additional carbon sink of 2.5 to 3 billion ton of CO2 equivalent through additional forest cover and tree cover। अब 3 टारगेट देखो। पहला तो 40% अचीव हुआ थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल रिन्यूएबल एनर्जी। सेकेंड, the reduction in the emission intensity of GDP by 30 to 35%।
2005 के कंपेयर में 33 से 35% रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी हुआ है टू द जीडीपी। और कार्बन सिंक 2.5 टू 3 बिलियन टन कार्बन हमने क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। सिंक मतलब एब्जॉर्प्शन। बाय हाउ वी एब्जॉर्ब, बाय प्लांटिंग द ट्री, एफॉरेस्टेशन। ट्री लगाओगे तो फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस में दे ट्रैप द कार्बन, तो ट्री एक्ट एज अ कार्बन सिंक। तो एफॉरेस्टेशन से कार्बन सिंक बढ़ा, कितना कार्बन रिडक्शन हुआ, 2.5 टू 3 बिलियन टन्स। ओके, तो ये अचीवमेंट। नाउ द आर्टिकल 4 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट ईच पार्टी शैल कम्युनिकेट फॉर और अपडेट इस एनडीसी। अब तुम्हें पूछा जाए, इसने बड़ा अच्छे से बताया, आपको याद दिलाया कि पेरिस एग्रीमेंट के जो चौथे नंबर आर्टिकल, अब ये प्री में पूछा जाता है कई बार, खासकर यूपीएससी में यू आर एक्सपेक्टिंग सम क्वेश्चन, ओके, लाइक दैट। फिर लोग बोलते हैं ना कि ये इतना डिटेल में पढ़ना होता है कि आर्टिकल भी पूछ लिया। इसलिए पूछ लिया क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइटेड है। ऐसे वो सारे आर्टिकल आपसे नहीं पूछेंगे, और इसका सिग्निफिकेंस है तभी तो आपको इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट कर रहे हैं। That's why what I always emphasize that economic survey for you people, once you are appearing for pre or mains, you must read। जनवरी में ही इकोनॉमिक सर्वे बच्चे पढ़ लेते हैं, जब वो पब्लिश होकर रिलीज होता है तो बच्चे जो होते हैं वाइज मैच्योर बच्चे, जो कई बार प्री मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, वो तुरंत पढ़ते हैं। और इससे कई कई क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आ रहे होंगे जो बच्चे इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। सो आर्टिकल 4 एम्फेसाइज किस पे करता है कि हर कंट्री को अपने अपडेटेड रिपोर्ट देना है। भारत ने भी इसी आर्टिकल के तहत, बिकॉज भारत भी पेरिस एग्रीमेंट का पार्टी है, भारत ने भी 2022 में क्या दिया, अपने अपडेटेड एनडीसीज दिए, ठीक है ना। तो क्यों दिया भारत ने, ये समझ में आया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, इंडिया इज ऑल्सो द पार्टी ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, एंड अंडर द पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 4 it is binding over all the parties that all parties shall communicate the updated NDC every 5 years। तो भारत ने 2022 में दिया है, अगर आपके अटेम्प्ट बच गए अगले 5 साल तो पढ़ना पड़ेगा फिर अगला वाला। Hope for the best। I am expecting that next year you must clear this examination, okay, otherwise the next document you have to read, next updated report। Therefore, in accordance with the aforesaid provision of the Paris Agreement, India submitted following updated to the first NDC। क्या अपडेट है, क्योंकि मैंने फर्स्ट एनडीसी में बताया था 8 गोल, 3 ऑलमोस्ट बहुत सारी हद तक अचीव किया हमने, जिसके बारे में मैंने बताया था क्वांटिटेटिव वर्ड है, नॉट क्वालिटेटिव। सो क्वांटिटेटिव अचीवमेंट आई हैड मेंशन्ड बिकॉज इट इज मेंशन्ड, आई हैड नॉट, इकोनॉमिक सर्वे हैज मेंशन्ड फॉर यू पीपल दैट व्हाट द क्वांटिटेटिव अचीवमेंट फॉर इंडिया। नाउ देखो अपडेट्स, पहला है फर्स्ट, टू पुट फॉरवर्ड एंड फर्दर प्रोपगेट अ हेल्दी एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग based on traditions and values of conservation and moderation, including through a mass movement for lifestyle for environment as a key to combating climate change। So what is the first agenda, the first target, improve lifestyle, okay। वर्ड लाइफ दिया है, LIFE, लाइफ का एब्रिविएशन क्या है, lifestyle for environment। You have to develop such a lifestyle which must be environment friendly। Getting my point? So the first emphasis is towards moving the sustainable environment by what? A sustainable lifestyle, okay। What is the second updated NDCs? To adopt a climate friendly and cleaner path, okay, then one followed hitherto, yani until now, by others at corresponding level of economic development। What? Adopt climate friendly and cleaner path।
आज जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसी लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जितना बेस्ट पॉसिबल वे हो आपको क्लीनर पाथ अडॉप्ट करना. Because as you know, India is developing economy. We have not the technology like US, but जितना है उतने में आप बेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करो and move towards the cleaner path. This is the agenda. एजेंडा क्या, ये नहीं है कि अभी आपके पास जो टेक्नोलॉजी नहीं है उसके लिए आप परेशान हो, लेकिन जो बेस्ट टेक्नोलॉजी आपके पास है उसको यूज करो एंड मूव टुवर्ड अ क्लीनर पाथ. डिपेंड ऑन योर ओन इकोनॉमिक कंडीशन. यहां लिखा भी है कि आपका जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वो पाथ अचीव करना है. तो जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज है उसी में हम बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करें और क्या करें, हम क्लीन रखें एनवायरमेंट को एंड वी अडॉप्ट अ क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लीनर पाथ. नेक्स्ट, व्हाट इज द अपडेटेड INDC और NDC. आई मतलब इंटेंडेड होता है, ठीक है ना, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन टू रिड्यूस द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाई 45% बाई 2030. कितना अचीव है, 2005 लेवल से 33 to 35. कितना अचीव करना है 2030 तक, 45. वी आर वेरी क्लोज टू दैट. Precisely, we are very close because we had already achieved what I have to achieve 10% much more. This is 2023. The target is still 2030. तो हो सकता है हम अचीव कर लें because we are adopting various measures. Now, to achieve about 50% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030. Already we achieve 40%. 2030 तक 50% अचीव करना है. तो हो सकता है होपफुली 10% और हम इंक्रीज कर जाए, क्योंकि मोर देन 40 है, 40 पॉइंट समथिंग डेसिमल परसेंटेज वी हैज ऑलरेडी अचीव. अब 50% अचीव करना है, समझ रहे हो ना, नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टारगेट ये हमारा है, ठीक है ना. ऑल दीज मे बी क्वेश्चन, all these may be a question in incoming examination, so you must keep in mind this figure. What is the target of India? Okay, with the help of transfer of technology and low cost international finance including from the green climate fund. मैंने आपको बताया था कि UNFCCC के अंदर ग्रीन क्लाइमेट फंड भी बना है, ठीक है, to help the especially the underdeveloped and developing economy, okay, to take the measures and to develop infrastructure, especially to reduce the greenhouse gases. Now, to create another, what is the updated NDCs? To create additional carbon sink of 2.5 to 3 billion ton of CO2 equivalent through additional forestry cover by 2030. So we are also emphasizing on the carbon sink. कितना 2.5 to 3 बिलियन टन. कब तक, 2030 तक. तो इंडिया कॉन्टिन्यूसली मूविंग टुवर्ड्स द एफॉरेस्टेशन. और मैंने बताया था कि रीड के बारे में बताया था, REDD, और भारत में उसमें एफॉरेस्टेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी डाल दिया. प्लस इंडिया नहीं शो करेगा कि वी आर, तो ये फिलॉसफी देने का कोई फायदा नहीं है. तो अगर आप बाहर कोई फिलॉसफी दे रहे हैं और खुद नहीं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको कोई वैल्यू नहीं देगा. Why the other countries are giving values to India? Because what the India is saying, try to achieve it, try to perform it. Okay, so by performance the India is showing that yes, we are reaching towards our goal despite we have certain challenges. Okay, and next NDC is the to better adapt to the climate change by enhancing investment in development program sector vulnerable to the climate change, particularly agriculture, water resource, Himalayan region, coastal region, health and disaster management. तो भारत क्या कर रहा है इसके लिए? मैंने आपको बताया NAFCC ऑलरेडी भारत ने लॉन्च कर रखा है. 2015-16 a special national adaptation fund on climate change. Already India has created a fund and India is achieving. Getting my point? So
This is another point which is comes under the NDC. What is another is to mobilize domestic and new additional fund from developed countries to implement the above mitigation and adaptation action in view of resource required and the resource gap. जितना हमें रिसोर्स से चाहिए वो भारत में सारे रिसोर्स अवेलेबल नहीं है. पहले तो हम अपने रिसोर्स रिक्वायरमेंट समझे, उसके बाद रिसोर्स गैप को समझे, और ये गैप कैसे फिलफुल होगा. Without the help of developed economy, it is not possible because we have less money in our hand. So what is the emphasis is? The emphasis is towards what? The emphasis is towards try to convince the developed nations so they will support us. अभी आगे चलेंगे कि भारत ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स भी क्या किया है, लॉन्च किया है. दूसरे देश भी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से पैसा उठा रहे हैं मार्केट से, भारत ने भी लॉन्च किया है. ये क्या तरीका है बाहर से पैसा लाने के लिए. तो यहाँ भारत किधर की तरफ देख रहा है, टू मोबिलाइज डोमेस्टिक एज वेल एज न्यू एडिशनल फंड्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज. बिना फंड के तो काम नहीं होगा, और फंड जो हमारे पास है वो लिमिटेड है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्विंस द अदर नेशंस that you must support, especially the developed one. As you, this is another NDC. What is another? 8 है अपडेटेड, पहले भी 8 थे, अभी अपडेट करके 8 दिया. वो 8 लिखे हैं. टू बिल्ड कैपेसिटी एंड क्रिएट डोमेस्टिक फ्रेमवर्क एंड इंटरनेशनल आर्किटेक्चर फॉर क्विक डिफ्यूजन ऑफ कटिंग एज क्लाइमेट टेक्नोलॉजी in India and for joint collaborative research and development for such future technologies. We have to develop the best technology of the world, cutting edge technology. Okay. And for that India is also what? Developing the infrastructure, institution. The best institution and infrastructure, research and development facility is increasing in India. And India is collaborating here with the developed economy as well as other developing economy. तो joint हमारा प्रोजेक्ट है. अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि इसके लिए भारत ने क्या किया है, अभी सेपरेट है आगे. तो ये आपने देखा, ठीक है, कि ये NDCs थे 8 जो अभी अभी भारत ने 2022 में क्या किया है, मेंशन किया है, दिया है UNFCCC को अपडेट कर. हर 5 साल पे अपडेटेड देना है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4 ऑफ UNFCCC पेरिस एग्रीमेंट. तो ये चीज़ें रिकॉल करोगे और बार बार अपने आसपास अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करोगे तो यू कैन मेमोराइज दिस फैक्ट्स वेरी इजली. what is very important, either you write or you discuss with your friends. If you have not good friend circle, you must write it and you can memorize easily. यही 2 तरीका होता है, या तो डिस्कस करो, लैंग्वेजेस यूज करो, फैक्ट्स को बोलो आपस में डिस्कशन में, वो चीज़ें तुम्हें याद होंगी, या तो फिर उसको कई बार लिखो अगर आइसोलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो. वैसे भी आइसोलेटेड प्रिपरेशन बहुत टफ होता है क्वालिफाई करना एग्जाम को. नेक्स्ट, वन ऑफ द 3 क्वांटिफाइबल टारगेट मैंने अभी बताया कि भारत ने इसमें अचीव किया है, जैसे एडिशनल कार्बन सिंक जिसको कि करना था. दूसरा मैंने आपको बताया था कि 40% नॉन फॉसिल फ्यूल्स का, उसके अलावा GDP का 30 to 33% we had already achieved till 35, 45 we have to achieve. Now country ranks 3rd globally. What the economic survey given us the data that India ranks 3rd globally with respect to the net gain in average annual forest area between 10 to 20, and I am expecting such kind of a question. ठीक है, भारत ने 2010 से 20 तक अपने एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स के कारण और थ्रू द एक्ट, अभी आप देखेंगे कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है,
फॉरेस्ट एक्ट है भारत ने, वी हैड डेवलप्ड सर्टेन एक्ट्स टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वी आर ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स एफॉरेस्टेशन एक्टिविटी. ड्यू टू दिस नाउ इंडिया अचीव रैंक 3 किस में? रैंक 3 है नेट गेन इन एवरेज एनुअल फॉरेस्ट एरिया. विश्व के देशों में कंपेयर करो तो हर साल भारत का जो नेट गेन है उसमें रैंकिंग अगर देखें तो नेट गेन हमारा जो कंपेयर करोगे तो हम 3rd पोजीशन पे हैं. अभी देखोगे उसके पीछे बोला कि क्या रीजन है, भारत सरकार ने ऐसे क्या पहल की जिसके कारण हम आज इस पोजीशन पर है कि हमारा फॉरेस्ट कवर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है. तो बोला इकोनॉमिक सर्वे हैज गिवन ग्रीन इंडिया मिशन, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि उसमें हम फॉरेस्ट कवर इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, उसके अलावा कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एक डेवलप किया है, उसे क्या बोलते हैं शॉर्ट में? कैंपा. एंड इट्स योर होमवर्क दैट टुमारो यू मस्ट रीड कैंपा एंड कम टू द क्लास. आप इसको पढ़ के आइए कि इसमें क्या कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, इस अथॉरिटी का मेन टारगेट क्या है, मेन फंक्शन क्या है, व्हाई दिस अथॉरिटी इज एस्टैब्लिश्ड एंड हाउ दे आर वर्किंग. नेक्स्ट इज द नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम व्हिच इज लॉन्च्ड बाय इंडिया. अनदर इज ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015. जस्ट ऑल्सो रीड ग्रीन हाईवे पॉलिसी. ओके, हाईवे के किनारे भी प्लांटेशन करना. ओके, उसके साथ साथ द पॉलिसी फॉर इन्हांसमेंट ऑफ अर्बन ग्रीन्स in urban area, the parks and the green carpet area has to develop under this mission. And national agroforestry policy as well as submission on the agroforestry SMAF etc. are among the most important one. Why the forest cover is increasing in India? Due to these interventions by the government. तो आपको एक पैराग्राफ में ये समझ में आ गया कि भारत में फॉरेस्ट बढ़ने का रीजन ये सारे पॉलिसीज हैं. ये आपके माइंड में होना चाहिए बिकॉज वंस यू आर राइटिंग आंसर व्हाई द फॉरेस्ट कवर इज इंक्रीजिंग इन इंडिया, so you must understand at least 2 to 3 policy you should quote in examination, not all. And the economic survey briefly give you idea how you have to write the answer in a limited paragraph of 150 200. इन्होंने इतने ही एरिया में सारी बातें बता दी कि क्या टारगेट है, कितना अचीव किया है, कितना अचीव करना है और क्यों अचीव कर पाए. आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, द फॉरेस्ट सर्वे दे हैड आल्सो मेंशन्ड. मैंने कहा बाइनियल रिपोर्ट आता है भारत सरकार का फॉरेस्ट के ऊपर हर 2 साल पर. The Forest Survey of India, FSI, is there. Assess the carbon stock, which is the amount of carbon sequestrated from the atmosphere and stored in the biomass. What kind of biomass? Like dead wood, soil, litter in the forest. पत्तियों में भी कार्बन है ना, पत्तियां गिर रही हैं, लिटर फॉल, उसमें भी कार्बन है. कार्बन वहां फिक्स हो चुका है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेड. ठीक है ना, अभी आपको मैं टेक्निक पढ़ाऊंगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक टेक्निक है. ओके, तो नॉर्मल नेचुरल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, पौधे क्या करते हैं, CO2 लेते हैं. अब CO2 पौधों में कंजर्व हो रही है, तो लकड़ियां डेड होंगी तो उसमें भी कार्बन है, इसीलिए उसको जलाते हो, फॉसिल की तरह काम करता है, फॉसिल फ्यूल है वो, डेड वुड. तो कहाँ कहाँ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है? बोला सॉइल में हो रहा है. ठीक है ना, कहाँ हो रहा है? लीटर्स में हो रहा है, जो चीज़ें सड़ गल रही हैं, गिर रही हैं, उसमें हो रहा है, डेड वुड्स में हो रहा है. ये तो नेचुरल प्रोसेस है. ठीक है, तो FSI assess the carbon stock, okay, in India's forest for the first time in 2004. पहली बार कब सर्वे किया FSI ने? 2004 में. यानी फर्स्ट टाइम वी आर थिंकिंग डैट कि कैलकुलेट करो कि भारत की जो फॉरेस्ट है उसमें सिक्वेस्ट्रेशन कितना हो रहा है कार्बन. पहला असेसमेंट 4 में किया गया, फिर बाइनली 2011 से कॉन्टिन्यूसली हो रहा है. आपने क्या सीखा कि FSI
Since 2004 they had first time assessed the carbon stock. Now they are continuously reporting us. अब है कि ठीक है, तो रिसेंट रिपोर्ट क्या कहता है? तो कहता है ISFR estimate the carbon stock of the forest about 7204 million tons in 2019. कितना सिक्वेस्ट्रेशन? 7204 मिलियन टन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हुआ. किसके द्वारा हुआ? हमारे जंगलों के द्वारा. ठीक है ना? विच इज एन इंक्रीज ऑफ 79.4 मिलियन टन ऑफ कार्बन स्टॉक इन कंपैरिजन टू 17. 2 साल में कितना बढ़ गया? इसका मतलब है और पौधे हमने लगाए ना. पेड़ और नहीं लगाते तो इतना कार्बन और कैसे यूज होता? पेड़ों के द्वारा कैसे स्टॉक होता, कैसे सिक्वेस्ट्रेड होता? नहीं होता. What this figure stated that? It means that we are increasing the forest cover. This figure gives us idea कि 17 में जो हमारा स्टॉक था उससे बढ़ गया है. कितना बढ़ गया है? 79.4 मिलियन टन कार्बन स्टॉक. So this is the benefit of afforestation. Afforestation make our environment clean and green. Getting my point? Forest act as a purifiers, air purifiers. Okay. अगर इसको हम कार्बन इक्विवेलेंट के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 30.1 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट. बात समझ रहे हो? केवल कार्बन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करोगे तो ये इतना आएगा. ट्री कवर. Among the Indian state, Arunachal Pradesh has the maximum carbon stock in the forest, followed by Madhya Pradesh. Again important for you for your coming screening paper. भारत में टोटल कार्बन स्टॉक 17 से 19 तक इंक्रीज किया इतना मिलियन टन. 19 में कितना है? ये इतना है. सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक कहाँ के जंगलों में है? बोला कि अरुणाचल. And if you look at the northeastern states, majority of states having the dense forest. Second is the Madhya Pradesh having the highest geographical area under the forest. Okay, percentage wise it is less to the Arunachal, but area wise it is much more because MP have the wider areas, geographical area. तो अब ऐसे समझो. तो क्या इकोनॉमिक सर्वे ने आपको आइडिया दिया कि कार्बन स्टॉक भी तुम्हें समझना चाहिए व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग. ठीक है ना? तो स्टेट के बारे में तुमने देखा, अरुणाचल और मध्य प्रदेश. एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल द इकोनॉमिक सर्वे हैज मेंशन, यू मस्ट कीप इन माइंड. ओके, नेक्स्ट. पर हेक्टेयर फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक अमंग डिफरेंट स्टेट एंड यूटी इंडिकेटेड हियर. Jammu Kashmir is contributing the maximum per hectare carbon stock 173.41 ton, followed by Himachal. ठीक है ना? तो यहाँ क्या लिखा है? पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में. यहाँ कार्बन स्टॉक इन द फॉरेस्ट इन इंडिया. यहाँ पर देखो एक सर्वे है, मैंने बताया था 2017 में 7125 है, 7209 हो गया, लगभग 79 मिलियन टन इंक्रीज हुआ. अभी देखिएगा कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज है. 2011 में 6941 मिलियन टन, 7044 हो गया, फिर 7082, फिर 7125, 7204. Why the carbon stock in the million tons is increasing since 2011 till 2019? Because of increasing forest cover thanks to afforestation schemes and plan different schemes we had already learned. ठीक है ना? नेशनल ग्रीन मिशन, कैंपा, ठीक है, नेशनल हाईवे ग्रीन कवर, ऑल दीज स्कीम्स कंट्रीब्यूटेड एंड दैट्स व्हाई द इंक्रीज. तो पर अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन स्टॉक्स अगर देखोगे स्टेट और यूटीज में पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक, तो जम्मू कश्मीर फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश, देन सिक्किम, अंडमान. लेकिन ओवरऑल कार्बन स्टॉक देखोगे पर हेक्टेयर नहीं, ओवरऑल देखोगे अरुणाचल प्रदेश फॉलोड बाय मध्य प्रदेश.
1 हेक्टेयर में जितने पौधे हैं वो जितना कार्बन स्टॉक करते हैं उसमें जम्मू कश्मीर टॉप पे है। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ द इकोनॉमिक सर्वे emphasizes the role of entire ecosystem. A separate hits is there. An economic survey emphasizing why we should protect the ecosystem. बात समझ रहे हो ना? तो मैंने वो हेड हटा दिया है, जस्ट आई एम डिस्कसिंग द कोर पार्ट. But what the first line they had mentioned under that head, that ecosystem play an important role in carbon storage, protect the coastal areas and enhance the water quality beside other services such as cultural, spiritual and tourist attraction. मैंने आपको जब बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम पढ़ाया तो बायोडाइवर्सिटी फंक्शन और इकोसिस्टम फंक्शन भी पढ़ा. बायोडाइवर्सिटी रिचनेस का फायदा क्या होता है? मैंने उसके फंक्शन बताए थे, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिक्रिएशनल, नहीं, habitat function. There are lots of function. Ecosystem having biodiversity, ecosystem also provide multiple function. Ecosystem having cultural values, because in ecosystem there is a biotic and abiotic factor. आपको पता है लोग जाते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा, that is a physical feature we are emphasizing. लोग जाते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, नहीं, अभी तो पर्वत की भी पूजा करते हैं और लोग जाते हैं to take a holy bath in the rivers at the occasion of Purnima or in the Kumbh or various fair and festival or on the occasion of Makar Sankranti. There are various rituals. तो आप क्या देखते हो, आप अबायोटिक फैक्टर्स का भी कल्चरल सिग्निफिकेंस है. नदियां भी जोड़ती हैं, उनके भी, उनको धर्म से जोड़ दिया गया या फिर आपके कल्चर से जोड़ दिया गया. ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं? So when I am talking about ecosystem, I am not talking about only the biotic factor. I am also talking about abiotic component of ecosystem also. और उसका भी importance है, उसका भी महत्व. अगर आप वही मिट्टी उठा लेते हो और मिट्टी से एक स्कल्पचर बना देते हो और उसको दुर्गा का रूप देते हो तो आप उसकी पूजा करते हो नवरात्र में 9 दिन. ठीक है ना? That become idol. And what you said? It is mother goddess. Try to understand. Aesthetic value बढ़ गई. There is a cultural significance of that. वो तो मिट्टी का बना हुआ है लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई, आपने पूजा कर लिया, आपने क्या माना? आप मानते हो कि उसमें माँ है और फिर उसके बाद आप उसका विसर्जन करते हो. आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैंने क्या कहा कि यहाँ कहता है इकोनॉमिक सर्वे कि इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंस समझना है तुम्हें, बहुत वाइटल इंपॉर्टेंस है. ये कार्बन स्टोरेज का भी फंक्शन करता है, ये प्रोटेक्ट करता है कोस्टल एरिया को भी, ये इन्हांस करता है वाटर क्वालिटी को भी. उसके अलावा ये कई तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कल्चरल, स्पिरिचुअल, टूरिस्ट अट्रैक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, दिस इकोनॉमिक सर्वे also emphasize on the wetland which is a part of ecosystem. What are the wetlands? Wetland are the natural or artificial aquatic or water bodies like fens, okay, like lakes, like ponds, the marshy areas. Okay, wetland मैंने बताया था कि आप पढ़ लेना, आपने किसी ने भी मुझे डिस्कस करके बताया नहीं whether you have gone through or not. So wetland can act as an sponges, they absorb. ठीक है ना? Sponges means they absorb the water, storing peak rainfall. आपके एरिया में खुला लैंड है, बारिश होती है, उस लैंड में पानी पहले एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होता है, वो स्पॉन्जेस की तरह एक्ट करता है. जब एक्सेसिव वाटर होता है तो लैंड के ऊपर आता है. उसी तरह पॉन्ड है, पॉन्ड ड्राई है, पहले वो धीरे धीरे फिलअप होगा. पता है गांव में लोग पहले पोखरा बनाते थे. हैव यू हर्ड द वर्ड पोखरा? उन्होंने क्या किया, वो दैट इज द वाटर स्टोरेज मैनेजमेंट, वो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक थी. क्या कर दिया, पहाड़ से पानी नीचे आया, एक डीप एरिया बना दिया. ठीक है ना? तो रेनफॉल, चूंकि द इंडिया हैविंग द रेनफेड एग्रीकल्चर, सो वाटर स्टोरेज टेक्निक थी. आपने बंडिंग कर दिया, आपने डिग कर दिया और जैसे ही बारिश का मौसम आता था, बारिश होती थी और तो वो उस एरिया में वाटर एक्यूमुलेट होता था, पूरे गांव के लोग उसका इस्तेमाल करते थे. ठीक है,
ये एक ओल्ड टेक्निक था भारत में वाटर कंजर्व करने का। धीरे धीरे ऐसी चीजें हम खत्म करते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर। आप समझ रहे हो, वी आर रिड्यूसिंग द वेटलैंड, एंड वंस वी आर रिड्यूसिंग द वेटलैंड we are disturbing the ecosystem. Why the economic survey is emphasizing over the wetland? Because wetland is very crucial for the sustainable ecosystem, and that's why they are emphasizing. Okay, and they are giving the function of wetland in a very brief: a sponges, storing peak rainfall and releasing water gradually during the lean season. Okay, Ramsar Convention signed on the 2nd of February 1971. Ramsar is a place in Iran where the parties meet and signed the convention, and under the convention the party has to follow the rules and regulation to conserve the wetland. और इसके अंदर भी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है, MR, जिसके तहत जो है जहां पर ज्यादा खतरा है वहां क्या किया जाता है, इंटरवेंशंस, और साइंटिफिक वहां आइडियाज देने के लिए एक टीम होती है जो कि सपोर्ट करती है. ओके, is one of the oldest intergovernmental accord signed by the member country to preserve ecological character of their wetland of international importance, and India में कितने हैं, 75. okay, covering area of 33.3 lakh hectare, and 49 of these have been added in the last 8 years. Why the 49 is added? Because they are on the verge of their extinction, but the conservation of this wetland is very important. So what is the major problem is the wetlands are in threat, but India is very sensitive because India is also party. So continuously the Indian wetland are coming under the records. रामसर साइट भारत में बढ़ते चले गए ग्रेजुअली, अभी टोटल कितने हो गए, बोला 75 हो गए. तो भारत सेंसिटिव है, कंजर्वेशन मेजर्स ले रहा है, but we are continuously losing our wetlands. Okay, अब यहां और बातें करते हैं. उन्होंने क्या एक और इशू उठाया इकोसिस्टम में, एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड की तरह ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैनग्रोव्स. सो few paragraph dedicated on mangroves in economic survey, and if there is a special dedication on this, it means there may be a question. Now try to understand mangroves, where they grow. They grow in a marshy area, and mangroves having what, nematothodes, special roots which is uplifted, okay, uprooted above the soils. They grow not towards the, there is a roots which is moving towards the deep soil, but some roots are moving outward, nematothodes having the nematopores. Why? Because in this region there is a lack of oxygen, water is always there. Okay, so as per the recent study, certain mangrove species in Chilka and Sundarban, Bhitarkanika is a very famous national park in Odisha, is one of the large mangrove apart from Sundarban, which is the largest mangrove India, mangrove region of India. So the mangrove near the Chilka Lake of Odisha and Sundarban along the east coast, and the Dwarka and Porbandar along the west coast of India are likely to reduce and shift landward by 2070. ये reduce हो रहा है, कोस्टल एरिया से ये श्रिंक हो रहा है लैंड की तरफ, यानी ये डैमेज हो रहा है. कहाँ का मैनग्रोव डैमेज हो रहा है, बोला चिलिका के अलोंग, सुंदरबन का मैनग्रोव, और साथ ही साथ वेस्टर्न कोस्ट पर द्वारका पोरबंदर. बोला तो बचाना पड़ेगा. ठीक है, अब है क्या कि ड्यू टू डिक्लाइन इन द सुटेबल हैबिटेट्स इन रेस्पॉन्स टू प्रेसिपिटेशन एंड सी लेवल चेंज, एंड व्हाई देयर इज sea level change and precipitation is disturbing due to climate change. So the climate change also affect what, mangroves, and mangroves is again vital. So इसके लिए भारत ने क्या किया, भारत ने एक लॉन्च किया नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम ऑन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैनग्रोव एंड कोरल रीफ. तो आपको याद होना चाहिए ना एटलीस्ट ये.
Yes or no? Yes. National Coastal Mission Program on Conservation and Management of Mangroves. Okay, and especially in the regions where they are shrinking with a very fast rate. What are the reason? The reason along the Chilka, the Vitarkanika region, as well as Sundarban, and the region along the western coast, especially Dwarka, Porbandar. Okay, so area which is, and you can draw the map very smartly. You can show these are the mangrove area, and in another map you can show the mangrove area is shrinking in this region. तो आपके पास विजन होना चाहिए हाउ टू पोर्ट्रे इन एग्जाम इफ यू आर राइटिंग. स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, तुरंत थ्योरी को कन्वर्ट करता है मैप और डायग्राम, और वो मैं आंसर राइटिंग में सिखाऊंगा. एक साथ सारी चीज़ें तो नहीं आपको बता सकता, ठीक है. तो यहाँ आपको तुरंत एक इंडिया का मैप बनाना है, हाईलाइट करना है द एरिया ऑफ द्वारका, पोरबंदर, भितरकनिका, चिल्का एंड सुंदरबन इज मोस्ट व्हाट वल्नरेबल one mangrove area of India. And what are the mission India has launched? The National Coastal Mission Program on Conservation and Management of Mangrove and Coral Reef. उसके साथ साथ और क्या है, रेगुलेटरी मेजर्स भी भारत ने लिए, इम्प्लीमेंटेड थ्रू द कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019. अभी केवल मिशन आने से तो होगा नहीं, बोला रेगुलेशन भी करना होगा, जो एक्टिविटी हो रही है उसको भी वॉच करना होगा along that region. So for that there is another regulatory mechanism, Coastal Regulation Zone CRZ Notification 2019. इसके तहत क्या किया गया है, ये नोटिफिकेशन निकलता है अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है. और the Wildlife Protection Act 1972, the Indian Forest Act 1927 and the Biological Diversity Act. अभी क्या किया और क्या तरीका अपनाया सरकार ने मैनग्रोव बचाने के लिए, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की. पहला क्या इंप्लीमेंट किया, उन्होंने एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया टू कंजर्व द मैनग्रोव इन दैट रीजन, हाउ टू डेवलप द सीआर द कोस्टल रीजन, बिकॉज कोस्टल रीजन में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या अगर इन्वायरमेंट डैमेजिंग है तो आपको पहले गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ता है. इफ यू आर नॉट टेकिंग द क्लियरेंस अंडर द नोटिफिकेशन, योर इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट. यू आर नॉट सपोज टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट टेकिंग द क्लियरेंसेस. सो ये है इसके अंदर. दूसरा क्या है, बोला नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट भी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी है, ठीक है ना. एंड रूल्स अंडर दिस एक्ट as amended from time to time, and as per the ISFR 2021 the mangrove cover in country has increased by 364 square kilometer in 2021 compared to 13. भारत में मैनग्रोव एरिया इन सारे प्रयासों के कारण थोड़ा सा बढ़ा है. इन प्रयासों के कारण, इन प्रयासों के कारण National Coastal Program on Conservation and Management of Mangrove and Coral Reef, apart from Coastal Regulation Zone Notification, Environmental Protection Act, Wildlife Protection Act, Indian Forest Act, Biological Diversity Act, all these acts as well as mission has cumulatively proved beneficial for the mangrove. And now since 2013 till 2021, how much area has increased? 364 square kilometer area. 364 square kilometer area as per ISFR report. ठीक है, तो तुमने देखा मैनग्रोव is very important and how the government of India is trying to conserve mangrove, despite which area is comes under much more threat. These regions still they are more vulnerable. Okay, ये देखिए, यह है मैनग्रोव कवर स्क्वायर किलोमीटर. देखो 2013 4628 4740 4921 49 and 4992, 364 square kilometer area increase from 13 to 2021 according to ISFR 2021. 19 के बाद 21 में ISFR आया, उसमें ये दिया है, ठीक है. इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो मेंशन दिस ग्राफ टू शो द ट्रेंड, इंक्रीजिंग ट्रेंड
एरिया कवर बढ़ रहा है किसका, मैनग्रोव का। ओके नाउ अब क्या है, और एक पैराग्राफ डेडिकेटेड है। अभी हमने क्या पढ़ा इकोसिस्टम में, वेटलैंड इज इंपॉर्टेंट, मैनग्रोव इज इंपॉर्टेंट। नाउ स्पेशल फोकस ऑन रिवर कंजर्वेशन बिकॉज रिवर इज पॉल्यूटिंग due to increasing urbanization, faulty agricultural practices, industrial wastage and garbage, river is polluting। तो क्या है, रिवर को कंजर्व भी करना है, रिवर को भी बचाना है, वी आर लूजिंग द रिवर्स। ठीक है, तो उसके ऊपर भी पैराग्राफ्स है। इकोनॉमिक सर्वे, व्हाट द इकोनॉमिक सर्वे स्टेटेड दैट द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन मैपिंग एंड कंजर्विंग द 5P। बट अब ये जो P है ना, ये सब चीजें हम यूज करते हैं अपने आंसर में। व्हाट इज द 5P, लिखा है द पीपल, पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। These are the 5 area where the government is emphasizing. Government is emphasizing to sensitize people. उनको डेवलप भी करना है लोगों का, ठीक है, और लोगों को सेंसिटाइज भी करना, पॉलिसी भी बनानी है, प्लान भी इम्प्लीमेंट करना है, प्रोग्राम्स भी लॉन्च करने हैं, प्रोजेक्ट भी बनाना है। अगर ऐसा आप 5P मॉडल अडेप्ट करेंगे तो हर सेक्टर में ग्रो होगा। तो 5P यू कैन अडेप्ट एनीवेयर एंड गवर्नमेंट इज okay। continued river conservation and rejuvenation efforts, rejuvenate भी कर रहे हैं बिकॉज रिवर्स ड्राई हो रहे हैं, ठीक है, आर अंडर वे। कैसे, एक प्रोजेक्ट है नमामि गंगे, ये स्पेशली गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी के लिए, स्पेशली फॉर द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ओके, एंड फॉर अदर रिवर्स ऑफ इंडिया दूसरा प्रोग्राम है, क्या नाम है उसका, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, NRC। तो नमामि गंगे किसके लिए है, गंगा और उसकी सहायक नदियों के लिए, ठीक है, और दूसरी बाकी इंडिया की नदियों के लिए अलग से एक प्रोजेक्ट है, क्या नाम है उसका, ठीक है, NRC। ये दोनों प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, टू कंजर्व एंड रिजुविनेट द रिवर। ओके नाउ सो गवर्नमेंट हैज, तो क्या रिजुविनेट हो पाया या कंजर्व हुआ, तो उसके ऊपर भी एक पैराग्राफ है, लिखा है कि ऑलरेडी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिलीज किया है सरकार ने, ठीक है, फॉर द रिजुविनेशन ऑफ 13 मेजर रिवर्स prepared by the Indian Council of Forestry Research and Education ICFRE, which is located at Dehradun। Sometimes where the institution is located also a question in pre। So where the ICFRE is located at Dehradun, and they have published the report of 13 major rivers projects especially for rejuvenation, okay, in the consultation with the state forest department and other line departments। नेक्स्ट, द वर्क प्रोपोज्ड अंडर दिस DPR इंक्लूड, अब केवल रिवर को रिजुविनेट करना ही एजेंडा नहीं है, रिवर के अलोंग एफॉरेस्टेशन, ठीक है, उसके साथ साथ रिवर बैंक मैनेजमेंट टू इंक्रीज द ग्रीन कवर, as well as to measures to contain the soil erosion, because rivers में फ्लड आते हैं तो soil erosion होता है, अगर आप embankment नहीं करोगे, फॉरेस्ट कवर नहीं लगाओगे, बंडिंग नहीं करोगे तो soil erosion होगा। तो केवल एजेंडा रिजुविनेशन का या कंजर्वेशन का, नदी में पानी आ जाए, यही नहीं है, नदी के किनारे ग्रीन कार्बेट बढ़ाना वो भी है, एफॉरेस्टेशन करना, ग्रीन कवर इंक्रीज करना, सॉइल इरोजन रोकना, ये भी एजेंडा है कंजर्वेशन का। और क्या है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना, ये भी एजेंडा है। और क्या एजेंडा है, सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन। आपको पता है वाटर में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जो कार्बन सिंक करते हैं, एल्गी कहाँ होता है, हाइड्रोफाइट्स कहाँ होते हैं, पानी में, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं। तो एक्वेटिक वाटर बॉडी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, उस पर भी इम्फेसिस है। और क्या इम्फेसिस है, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, मॉइस्चर कंजर्वेशन, लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट एंड इनकम जनरेशन। द रिवर एक्ट एज अ वाटरवेज, अभी अभी आपने देखा वाराणसी में लॉन्च हुआ ना, फेरी लॉन्च हुआ,
अब जाओ टिकट लो, फेरी में घूमो, ठीक है, स्टे देयर, द गवर्नमेंट्स इनकम विल इंक्रीज, वेरियस पीपल इंगेज इन दैट। गंगा के किनारे उन्होंने क्या बना दिया है, टेंट हाउसेस बना दिए हैं, यू कैन स्टे देयर, यू कैन एंजॉय योर मील एंड यू कैन just that is having the aesthetic value, and they are developing tourism. They are also, the river is also a transport, you can say transport ways, means of transport, the waterways we had developed in India. Okay, waterways 1 2 3 4 5 6 I will discuss in the India section. Okay, apart from that, तो इकोनॉमिक वैल्यू, आप उसमें फिशरी भी करते हैं, ठीक है ना, तो यू आर डूइंग वेरियस एक्वेटिक, एक्वाकल्चर करते हो ना, उससे भी आपकी इनकम होती है। So there are various things we are doing. So why the river rejuvenation and conservation is required? River rejuvenation and conservation is required because of income generation also, because various people are directly and indirectly depend on rivers for their economic purposes. Okay, आपको देखोगे ना कि पूरे इलाहाबाद बिहार गंगा के बेल्ट में सैंड में लोग कुकम्बर, ठीक है, वाटरमेलन, इसकी भी खेती करते हैं, वेजिटेबल ग्रो करते हैं। ओके, बिकॉज दैट एल्यूवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल, गेटिंग माय पॉइंट? सो that is very vital and important, you have to know, and India having the very fertile alluvial soil thanks to these rivers. So we have to conserve the river, because river always what keep carrying the new soils when the flood appear. आपको मैंने बताया है प्लेन्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब नेशनली डिटरमिन्ड इंडिसेस के बारे में मैंने आपको बताया, पीएम ने पंचामृत जो है COP26 मीटिंग में ये बात कही थी, इसके ऊपर मैं आगे बताऊंगा। और मैंने क्या कहा कि इंडिया हैज़ ऑलरेडी अचीव 40% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी टारगेट। कल एक और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वन डे मोर ऑन दिस, एक दिन और लगेगा मुझे टू कवर द इंटायर टॉपिक, ठीक है। तो ये इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है जो कि हमने रीच किया है, ठीक है। देखो इंडिया में ऑलमोस्ट 25% इन द 2021, ये जो ग्राफ है फ्रॉम हेयर टू हेयर, इट इंडिकेट व्हाट, द थर्मल, इट इंडिकेट थर्मल, व्हाट दिस ग्राफ इज शोज रिन्यूएबल एनर्जी, ये है परसेंट ऑफ द नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी, और ये है रिन्यूएबल एनर्जी, अभी देखेंगे, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये है लार्ज हाइड्रो, ये है लार्ज हाइड्रो, अगर ये तीन, उसके अलावा आप रेड देखेंगे तो ये न्यूक्लियर है, रेड वाला क्या है, न्यूक्लियर है। तो अगर आप ये देखेंगे कलर, तो ये दिखाता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सबसे ज़्यादा भारत में किसका है, थर्मल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, एज यू नो वी आर लार्जली डिपेंड ऑन न्यूक्लियर, ओनली 1% है। ये रेड कलर का जो स्ट्राइप बैंड दिख रहा है, ये न्यूक्लियर एनर्जी है। तो अभी हमारे पास उतने न्यूक्लियर पावर प्लांट है नहीं, ठीक है। उसके बाद ये जो तुम देख रहे हो, ये कलर यहाँ पर दिया है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को, और ये जो दिया है लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया हैज़ डेवलप्ड लार्ज हाइड्रो। टेहरी इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड, ओके, दुनिया में सबसे ऊंचा डैम है टेहरी, भागीरथी रिवर के ऊपर। तो इस तरह से हमने कई सारे डैम भी बनाए। सो वन मोर क्लास आई विल डिस्कस एंड आई विल गिव यू आइडियाज़, एंड दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। अभी एक डेडिकेटेड पैराग्राफ है कि इन्वेस्टमेंट सिनेरियो भारत में क्या है। मैंने कहा चूँकि हमारे हाथ में कम पैसे हैं, तो हम दुनिया की तरफ देख रहे हैं, खासकर डेवलप नेशन की तरफ, कि वो हमें सपोर्ट करें। भारत को यहाँ पर यह दिखाया है कि इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल सेक्टर में 2014 के बाद क्या रहा, 19-20 में थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, 17 के बाद। रीजन क्या है इसका, कोविड। कोविड के समय इन्वेस्टमेंट रोक दिया लोगों ने, क्योंकि क्राइसिस सभी देशों में थी, उसका इम्पैक्ट दिखता है आपको। तो ये भी दिखाई देगा, यहाँ मैंने लिखा है एज पर द रिन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ड्यूरिंग द पीरियड 14-21 टोटल इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल इज टू 78.1 बिलियन यूएस डॉलर इन इंडिया। 78.1 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट भारत में, एंड इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल हैज बीन क्लोज टू और हायर देन $10 बिलियन पर ईयर सिंस 16।
except deep in 2020 likely due to various COVID restriction. बताया ना यहाँ कि 2020 में डाउन चला गया, अदरवाइज आप देखिएगा तो 2016 के ऑनवर्ड हमेशा 10 बिलियन के आसपास रहा है कि नहीं? देखो ऑलमोस्ट 10 बिलियन के आसपास रहा है ना इन्वेस्टमेंट, लेकिन 2020 में डाउनफॉल हुआ ड्यू टू कोविड 19 रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना, बाहर से आना जाना रिस्ट्रिक्ट हो गया, सारी फ्लाइट्स बंद हो गई, सारे डील्स रुक गए, स्टॉप हो गए, तो इन्वेस्टमेंट कम आया भारत में, लेकिन फिर वही बढ़ गया ना, मोर देन 10 हो गया कि नहीं? यानी भारत में रिन्यूएबल सेक्टर में कॉन्टिन्यूसली 10 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बीच में एक गैप पीरियड है 2020 और ऑब्वियसली यू कैन से ड्यू टू कोविड-19। ओके, और फिर इसके लिए फंडिंग कैसे हो रही है इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, और रेस्ट रिमेनिंग पार्ट। सो 1 class more I will discuss and I will finish it. And what is the homework for you people? You must prepare on at least जो मैंने बताया था कि कुछ स्कीम्स, और दूसरा आप तैयार कीजिए एयर पॉल्यूशन। So there is a homework for you people. You must prepare air pollution. Okay. So enjoy. Have a nice time. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir.